everyone, welcome to YourPedia and this is Shubha. So are you preparing for NHPC? Then you must have done thorough research about the organization NHPC. That it is one of the largest hydropower development organization in India. It has entered into diversified segments like solar, wind energy and many more. It has also introduced the Green Hydrogen Initiative. I must say that this much knowledge is not at all sufficient. You need to prepare wisely for the other segments of NHPC too. The multiple domains, like what about the management part, about the products which it has launched, about the initiatives which it has brought in the market, why it is in the news these days, about the CSR activities, about the competitors which are present in the market related to it, where are the, you can say, the subsidiaries with which it has made the joint ventures and many more details. And plus, what's the best about the most expected HR questions which could be asked in your interview. So one easy segment is that you just need to download the documentation, which I'm going to showcase a glimpse of it in this video also. I'll be discussing it out in just a brief manner. What you can do is you can download the documentation where you can get everything under the umbrella in this one documentation, and you just need to put an hard copy. Just keep on ticking the pointers so that you have the sufficient knowledge how much it is required to go for your interview. Second, prepare it through the mocks and the HR sessions, which are very mandatory to practice and to boost your confidence. So that is the all thing that you require. So let's get started, and here I'm going to highlight the documentation. But wait, you can download the documentation by just going to the YourPedia panel, go to the download section, and in this section you will be getting the documentation related to NHPC, another document related to the HR questions related to multiple domains for the HR, PR or the law ones. So you can put your hands on the particular documentation which you require. So let's get started with the documentation that is related to NHPC. Now, very first is the source of information, which is generic. Like when they ask you, what do you know about NHPC? Suppose they say, क्या NHPC के बारे में पढ़ के आए हैं? क्या पता है आपको हमारी organization के बारे में? क्या roles and responsibilities हम निभाते हैं? तो all these things are there in the very first part, where you just need to understand कि कब ये incorporate हुई थी, कौन से ईयर में incorporate हुई है, under which act it is there, कौन कौन से segments में इसने enter कर लिया है, diversifications कहाँ पे है, कहाँ पे headquarter है, कब फाइंड की गई थी, इंडस्ट्री किसके रिलेटेड आता है और इसके प्रोडक्ट्स किसके रिलेटेड है. तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू बी अवेयर अबाउट. सो हियर द ब्रीफ इज गिवन अबाउट एवरीथिंग, राइट. इसके बाद हमारे जो NHPC ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज ऑलरेडी एंटर्ड इनटू रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट. सो कब इनिशिएटिव लिया था, क्या इनिशिएटिव था, व्हाई यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, और आपको इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है अबाउट REIA. सो ऑल दीज थिंग्स दैट यू नीड टू इनकॉर्पोरेट. Apart from it, one very important here it is about the key highlights. You know that organization grows yearly, not every year, but yeah, there are certain highlights about every organization कि इस organization में हमने इस time पे हमारी incorporation हुई थी, फिर हमें ये award मिले थे, हमारा ये status बना था. तो मतलब every organization, whenever you are preparing, you must be seeing certain highlighted concerns, right? तो जैसे कब incorporate हुई थी ये, कब ये first hydroelectric project कब का स्टार्ट हुआ था, NSE और BSE में कब लिस्ट आउट हुए थे, इन्होंने सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स में कब इन्होंने स्टार्टअप कर दिया था, अभी इन्होंने NHPC में क्या ग्रांट मिला है, इनको नवरत्न स्टेटस मिला है ऑन 30th अगस्त 2024. सो रिसेंटली इट इज ऑल अबाउट द हाईलाइट्स, और ये किस डिपार्टमेंट के अंडर आता है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए. नाउ, who are the heads of this organization, about the management part, this is something very important. और मैं आपको इनमें से बताती हूँ. यहाँ पे मैंने आपको सारे highlights दिए हैं related to the chairman and managing director, who is director in finance, director in personnel, director in projects, government nominee director, independent director. Now you see the most important part, how the question can pop up to you. Now you must be aware about Shri Rajkumar Chaudhary, right? Now where it mention is कि you know like आप suppose civil से आते हैं and they ask you, आपको पता है हमारे chairman sir की कौन सी branch आती थी, वो भी civil से ही आते हैं. तो there they start a correlation with it. It's not but obvious आप सीधा chairman बता दीजिए. It is something कि क्या आपको उनके बारे में थोड़ा पता है, you have done a good research about it. So they just have to check कि क्या आप जब भी किसी organization के बारे में आते हैं उनमें, so आप क्या prepare करके आते हैं उसके बारे में. So that is something they want a slight input. So here you can start about, you just need to aware कि क्या कहाँ से उन्होंने किया था अपना एडवांस डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किया था. नाउ देन ही स्टार्टेड हिज करियर. सो थोड़ा ब्रीफ आप पढ़ लीजिए. देन इज हेड ऑफिस कहाँ है, फरीदाबाद हरियाणा इंडिया में है. एंड द विजन एंड मिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सी व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट,
विजन आ जाता है, आप अपने 10 साल बाद 20 साल बाद एक पर्टिकुलर आपका एम आ जाता है, लॉन्ग टर्म गोल आ जाता है कि आप एक ग्लोबल लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहते हैं फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्लीन पावर थ्रू कॉम्पिटेंट रिस्पॉन्सिबल एंड इनोवेटिव वैल्यूज। मिशन आ जाता है कि आप अचीव करना चाहते हैं एक्सेलेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ क्लीन पावर एट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। नाउ द क्वेश्चन कुड बी कि क्या आप हमारी वेबसाइट पढ़ के आए थे तो आपने मिशन और विजन जरूर देखा होगा। तो मिशन, आपका मिशन लाइफ का और हमारा मिशन कैसे एक दूसरे के साथ अलाइन करता है, सेम फॉर द विजन। या आप कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं कि द वे द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ विजन, उसी तरह से मेरा विजन है जो अलाइन करता है, दैट इज द रीजन आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। सो व्हाई पर्टिकुलरली एनएचपीसी? दिस कुड बी वन पार्ट वेयर यू कैन से दैट यू हैव एन इंटरेस्ट, यू कुड बी progressing, you can say you want a career progression in your life, आपको growth चाहिए लाइफ में, आपका कुछ की इंटरेस्ट एरियाज मैच करता है, कोर डोमेन्स मैच करते हैं, विजन मैच करती है, तो उसके लिए विजन या मिशन कुछ पता होना चाहिए, एंड दैट इज वेयर योर आंसर कुड बी सब्जेक्टिव एंड डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। देन इज कंपनीज प्रोडक्ट्स एंड ऑपरेशंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, किन किन चीजों में एनएचपीसी इन्वॉल्व आ जाती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स में, पावर ट्रेडिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज में, research and development in sustainable energy solutions. Now where the subsidiaries, about the subsidiaries also you should be aware. तो ये थोड़ा की हाइलाइट्स है, इसके बारे में पढ़ना। पावर स्टेशंस कहाँ कहाँ पे हैं, कितनी कैपेसिटी में है, ईयर ऑफ कमीशन कब मिला था, तो बेसिकली अपने एरिया के पास वाले तो जरूर पढ़ लेना इसको। Then is the international initiatives also that it has broadened its curriculum, subjective है, horizon उन्होंने expand किया है, competitors कौन से हैं हमारे मार्केट में और हम इनसे डिफरेंट कैसे बन सकते हैं, या क्या हमने what you can be, जब आप बोर्ड में आते हैं आप क्या क्वालिटीज ऐसी लेकर आते हैं कि हम अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ बहुत अच्छे से एक्सपैंड कर पाएं, उनको compete कर पाएंगे, तो आपके इनिशिएटिव्स इसमें आ जाते हैं। फाइनेंस के बारे में पता है, कितना मार्केट शेयर है हमारी, रिसेंटली हमने कितनी परफॉर्मेंस, कितना हमने रेवेन्यू कमाया है, कितना प्रॉफिट ओरिएंटेड है, हमारी कितनी कंट्रीब्यूशन चल रही है, सो ऑल दीज थिंग्स। प्लस वेरी इंपॉर्टेंट इज अबाउट द रीसेंट एनएचपीसी प्रोजेक्ट्स कि कहाँ कहाँ पे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन बी जस्ट हेडिंग टूवर्ड्स, राइट। सो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। नाउ लास्ट इज अबाउट द सीएसआर एक्टिविटीज टू। सीएसआर एक्टिविटीज आर इंपॉर्टेंट कि जैसे आप बता सकते हैं कि कहाँ पे एनएचपीसी अपना बेंचमार्क दैट इज इट इज कंट्रीब्यूटिंग इन मल्टीपल डोमेन्स, तो आप वहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट्स के रिलेटेड मेडिकल कैंप्स प्रोवाइड करना, इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्कूल्स, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड मॉडर्नाइजेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर नर्सरीज, तो कहाँ पे सीएसआर एक्टिविटीज कहाँ पे एनएचपीसी इज एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग, राइट, एंड व्हाट आर द रीसेंट अवार्ड्स व्हिच एनएचपीसी हैज गॉट, राइट, सो सम रीसेंट अवार्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Now the question comes is, see, whenever you are going for any organization, do remember the two important questions for HR, which is a but obvious one, आपकी introduction and plus why that particular organization. So here why NHPC. अब बेसिक आ जाता है कि जैसे सपोज कीजिए आप अपनी जॉब सिक्योरिटी, आपके लिए आंसर आ जाता है, बट आप इसको डायरेक्ट वे में पोर्ट्रे मत कीजिए। व्हाट आर द वेज, जैसे सैलरी बोलना, ये बोलना, अब ये वर्क लाइफ बैलेंस, दिस इज समथिंग व्हिच अ स्टूडेंट स्टेट्स, बट दीज आर नॉट द राइट वे टू आंसर इन अ क्वेश्चन। दिस इज समथिंग दैट कुड बी वन ऑफ द मोटिवेशन फॉर यू, but it should not be the very first motivation for you guys. What could be the motivation? The core domains which are matching your interest. It could be the kind of a career progression which you want, about the projects which NHPC is heading and you have an interest towards it, about your passion and interest, about the contribution towards the country, about the society. All these things are important. तो ये थे मैंने जनरिक आपको बताए जो आप लोग आंसर करते हो, बट ये गलत है। कभी भी वाई के केसेस में वर्क लाइफ बैलेंस, जॉब सिक्योरिटी या एक कंफर्टेबल स्पेस या पर्क्स या अलाउंसेस ये मत मेंशन करना, दिस इज बिग नो। Then is what are the expected HR questions? Now here I just given a brief of it. मैंने आपको एरिया वाइज, डोमेन वाइज अलग NHPC के क्वेश्चंस, HR क्वेश्चंस जो आपके डोमेन से रिलेटेड होंगे, HR, PR और समथिंग लॉ रिलेटेड, वो अलग डॉक्यूमेंट्स में मेंशन किए हैं, एंड आई हैव अ सेपरेट वीडियोस फॉर दैट, प्लीज गो एंड वॉच दोज वीडियोस एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। यहाँ पे आपको जनरिक मिलेंगे कुछ डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड टू, जैसे आप अपने बारे में बताइए, अपने बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिए, आप एनएचपीसी में क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, एनएचपीसी के प्रोजेक्ट्स के बारे में, एनएचपीसी कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स में, क्या चैलेंजेस आपने कभी फेस किए हो, स्ट्रेंथ वीकनेस के बारे में, सीएसआर एक्टिविटीज़ के बारे में, 5 इयर्स कहाँ पे अपने आप को देखते हैं डाउन द लेन, आपने कभी टीम में मार्क किया है तो क्या आप चैलेंजेस फेस किए हैं, what are your expectations from NHPC as an employer,
कैसे आप कंट्रीब्यूट करेंगे एनएचपीसी की ग्रोथ में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, व्हाट हाउ वुड बी डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल, अबाउट योर बिगेस्ट अचीवमेंट, रिग्रेट, अबाउट योर हॉबीज, SWOT analysis, and many much more questions. So all those questions are there in the another documentation. For this, the main purpose was to make you familiar about the important aspects and important domains of NHPC. Now second part comes is जब भी आप preparation करें अपना feedback ज़रूर लें, because that is important. Only practicing on your own is going to give you a good booster. But what are your drawbacks and what are your shortcomings? That for that you need an improvement and you need a mentor for that. So practice your HR when technical part with the mentors of YourPedia. So all the best guys, and keep preparing, and you can download the documentation right now and from the YourPedia panel. Take care, prepare to the best, and have a good day.